ہم جس تقریب میں شریک ہیں اس میں بشپ جان الیگزینڈر ملک جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر مہمان خصوصی جو ہیں وہ فاروق ایچ نائک چیئرمین سینٹ ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں، کرسمس کا دن منانے کے لیے آئے ہیں، ایک یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج جب قوم کو بہت ہی زیادہ ملکی یکجہتی کی ضرورت ہے تو اس وقت یہ لوگ خاص طور پر ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار کے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو ناظرین، ہم ابھی چلیں گے اور آپ کو ان تمام اپنے مسیحی بھائیوں بہنوں سے بات کریں گے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ لوگ تھے تو ان کی محبتوں سے، ان کے پیار سے آج پاکستان جو ہے وہ اس مقام پر ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اور چل کے ان سے بات کرتے ہیں۔ کرسمس زندگی کا تہوار ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ خدا یسوع مسیح زندگی دینے کے لیے آئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو چنگا کرتے تھے۔ وہ موت نہیں، زندگی دینے کے لیے آئے، اور وہ زندگی کا تہوار ہے کرسمس۔ کرسمس نور کا تہوار ہے، اور کینڈلز ایک سمبولک ہے اس نور کا۔ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ وہ دنیا کا نور ہے، اور یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا۔ میں ان شارٹ کر رہا ہوں تاکہ اور باتیں ہو سکے۔ کرسمس نجات کا تہوار ہے۔ خدا یسوع مسیح کا نام یسوع مینز نجات دہندہ، کہ اس نے نجات کے لیے وہ آئے۔ پھر کرسمس امن کا تہوار ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ امن کیسے ہوا؟ خدا یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ امن کے لیے ہے، اسی لیے فرشتوں نے جو گیت خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر گایا وہ یہی تھا کہ آدمیوں میں صلح اور دنیا میں امن ہو۔ یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تو اپنے دشمنوں سے پیار کر، دشمنوں سے پیار کر۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو تو اس کو کھانا کھلا، اگر وہ پیاسا ہے تو تو اس کو پانی پلا۔ دشمن کو محبت سے جیتنا ہے، بدلہ نہیں بلکہ معافی، نفرت نہیں محبت، موت نہیں زندگی۔ یہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اور یہی ہم نے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کرسمس کے ناطے سے کہ کرسمس محبت کا تہوار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، صرف کرسچنوں سے نہیں رکھی۔ پلیز نوٹ کیجئے، خدا نے، یہ کلام میں مقدس کی آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح نے محبت کی تعلیم دی۔ You love God and love your neighbor. Something like that مولانا ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق البلاد۔ Love God, love your neighbor. اور نیبر وہ نہیں جو نیکسٹ ڈور رہتا ہے، نیبر وہ ہے جس کسی کے ساتھ آپ بھلائی کر سکتے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کرسمس کی اسپرٹ کو اپنے سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک اور یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ ہو جائے گی۔ پر یہ امن کا گہوارہ بنتی کیوں نہیں؟ بات کیا ہے؟ ابھی مولانا خبیر آزاد کو میں کہوں کہ آئیں، وہ یہی باتیں کریں گے جو میں کر رہا ہوں۔
وہ اس لیے نہیں بن پا رہی کہ ہم نے مذہب کو پلوٹ کر دیا، مذہب میں ملاوٹ کر دیا، اور مذہب میں ملاوٹ سیاست سے ہوئی ہے۔ جب ہم نے سیاست اور مذہب کو اکٹھا کیا تو سیاسی گیمز تو بڑی چلتی ہیں نا جی، ود ڈیو اپالوجی یور ایکسیلنسی، ہر قسم کی گیمز چلتی ہے، تو اس میں ہم نے مذہب میں ملاوٹ کر دی، سیاست لاگ کر دی۔ آپ نے بہت ہی ایک خوبصورت میسج دیا ہے جس وقت آج ملک کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے بننے میں کاسٹنگ ووٹ بھی ایک کرسچن کا تھا، تو یہ اتنا بڑا محبت کا پیغام ہے۔ اس حوالے سے آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے آج خاص طور پر کرسمس کے دن کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم کسی چیز کو، نہ زبان کو، نہ کلچر کو، نہ مذہب کو کہ ہمیں وہ ڈیوائڈ کرے۔ ہم خدا کی نظر میں کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ عدالت والے دن خود ہماری عدالت کر لیں گے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں تفریق نہ پیدا کریں، کیونکہ مذہب کا کام محبت پھیلانا ہے، نفرت پھیلانا نہیں، اور ہم یہ محبت کا پیغام پھیلاتے چلے جائیں، نفرتوں کو دور کریں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اسی کے لیے جیے، کام کریں اور مریں۔ یہ میرا پیغام۔ ملک صاحب، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی کرائسس آئے ہیں تو آپ نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی جب ملک میں کرائسس ہیں اس میں آپ کیا کریں گے؟ میں یہی کروں گا کہ میں پاکستان کے لیے جیوں گا، میں پاکستان کو ہم سامنے رکھنا۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ پاکستان کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کے لیے کرتے ہیں، اور یہی میرا اعتراض ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ چھٹیاں منانے یہاں جاتے ہیں۔ جی، تو اگر میں کہیں چھٹیاں منانے جاؤں بالی میں تو وہاں کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں، ٹرو، ویری ٹرو۔ میں تو ایک ٹورسٹ ہوں، لیکن اس کو ہم ایز اے ٹورزم کے لیے استعمال نہ کریں، ہم ٹرولی پاکستان کی مٹی سے پیار کریں اور خدمت کریں یہاں کی، تو پھر یہ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ اس میں چاروں موسم ہیں، ہر قسم کا لینڈسکیپ اویلیبل ہے، لوگ اچھے ہیں، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کمٹمنٹ کی کمی ہے پاکستان کے ساتھ۔ سر، آج کے خوبصورت دن کے حوالے سے جتنی ہی خوبصورت آپ نے تقریر کی ہے اس میں آپ کرسچینٹی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف کرسچنز کو نہیں دے رہا، میں بشپ آف لاہور ہوں، صرف مسیحوں کا نہیں، سارے بسنے والوں کا۔ جی بالکل۔ میں نے ہمیشہ یہ اس چیز کو رکھا ہے کہ ہم بلا امتیاز مذہب و ملت تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کی مرہم پٹی بھی کرتے ہیں، ان کی ضروریات جہاں تک ہے ہم وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانیت کی ناطے سے جینا چاہتے ہیں اور خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے، صرف مسیحوں کے لیے نہیں۔ Nice function and I liked it a lot. Wish you all the best. نہیں، آپ یہ بتائیے گا، آپ یہاں پر آئی ہیں، آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ کس طرح کا آپ کو یہ فنکشن لگا؟ یہ ایک محبت کا پیغام ہے، خوشی کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور سب لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹنے کا پیغام ہے، اور میری طرف سے سب کو ہیپی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر۔ Enjoy Christmas with your family members, share happiness and distribute gifts, share gifts with each other, and stay happy. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, people. It comes a year, so I think you guys should invite with giving gifts and all. So, well, this dinner, this place is quite awesome, and it's a great time to celebrate with the family and friends. People who are abroad or something, I suggest you should celebrate this with the family. This is the best. And winter this year is awesome, seriously. So I suggest, celebrate this with the family and enjoy a lot. So Merry Christmas to you guys. So یہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور پھر وہ جب انسان خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر وہ یہی چاہتا ہے کہ اس محبت کا اظہار جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت کے وسیلے سے کیا جائے۔ عرفان صاحب، آپ نے ہمیشہ پاکستان سے محبت کی ہے، اور پاکستان کے قیام میں بھی آپ کا ووٹ جو تھا بڑی اہمیت کا حامل تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس میں آپ کیا چاہیں گے اور کیا آپ کے احساسات اور جذبات؟ دیکھیں جی، پاکستانی ہونے کے ناطے سے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے فلاں یہ فلاں شخص ہے، اس سے نہیں ہے، ہم سب اسی ملک کی پیداوار ہیں،
इसी मुल्क में हमने सब कुछ बरकत पाई है और हम सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत है। इख्तिलाफ राय जरूर हो सकती है, सोच फर्क हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक की सोच होगी तो बड़ी मुनाकिस सी तस्वीर हो जाएगी। लेकिन अगर सब मिल के काम करेंगे तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो मैं इस वक्त ये सोचता हूँ कि हमें जो अपने ज़ाती मफादात है उनको तर्क करके खुदा की ज़ात को सामने रखते हुए मुल्क के लिए काम करने की जरूरत है। देखिए जी, आज इस पाकिस्तान को, हमारे प्यारे वतन को ज़रूरत है मोहब्बत की, अमन की, दोस्ती की, कुर्बानी की, एक दूसरे के काम आने की और तरक्की की। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का फंक्शन भी जो ये हमने सब ने अटेंड किया है और देखा है, इसमें भाईचारे की फिजा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर बसने वाले दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग भी जो हैं उसी तरीके से आज़ादी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और हमारे कायदे आज़म के मुताबिक जो है उनको तमाम वो सहूलतें हासिल होंगी जो कि एक अच्छे मुहज़्ज़म मुल्क को हासिल होती हैं। इस खुशी के मौके पे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले हैं, ठीक है। तो सब लोगों को बगैर किसी मजहब की तफरीक के, सब लोगों को कोई भी इवेंट जो आता है खुशी का, उसको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बड़ा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, हमने बिशर साहब की बातें सुन के, और ये उन्होंने यही जाहिर किया है कि ये मुल्क जो है ये ना तो क्रिश्चियंस का है ना मुस्लिम्स का है, ये एक कौम का है और यहाँ पर सभी मिलकर सबको रहना चाहिए, एक झंडे के तले एक कौम बन के रहना चाहिए और दुश्मनों से हर तरह से मुकाबला करना चाहिए। ईसाई हो या कोई मुस्लिम हो या कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, उनकी तालीमात ने यही कहा है कि हम सबको मिलकर रहेंगे तो दुश्मन के हर वार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम मुल्क अवाम जो है ये ना सोचे कि मजहब क्या है, ये हम ईसाई हैं या मुस्लिम हैं कि समथिंग, जिनका रिलीजन जो है उनका अपना जो है उसमें कह सकते हैं उनका अपना है, लेकिन हम सबको मिलके एक कौम के इस परचम के साए तले सबको एक ही रहना चाहिए, बल्कि और खुशी से मोहब्बत से अपने इस नए साल को एंजॉय करें और जितनी भी बैड हैबिट्स हुई हैं या जितनी भी गलतियां हो चुकी हैं उनको भूलें और उसके बाद अच्छी सी एक जिंदगी को शुरू करें और अच्छे अच्छे जज्बात और अच्छे अच्छे जो पेशेंस हैं उसको लेकर आगे चलें और बढ़ते जाएं और मुल्क को संवारें और समथिंग। ये कौन सी जगह से? मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करती हूँ, मैं मजंग एरिया से आई हूँ। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं टीचर हूँ इस इंस्टीट्यूट की। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट की जी। आप ये बताइएगा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के बेसिकली कि हम लोग डिफरेंट रिलीजन से हम लोग जो बिलोंग करते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, वट एवर। सो हम लोगों को मिलकर इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है, हम लोगों को बिल्कुल यूनिटी हम लोगों में आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ना मुसलमान का है, ना किसी क्रिश्चियन का है, ना किसी हिंदू का है, ये पाकिस्तान हम सबका है और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और कुछ कहना चाहें? और कुछ मेरा तो यही सबसे जो मैसेज है कि सब प्यार मोहब्बत से रहें, ना कोई ये सोचे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये ना सोचे कि हम कौन है, ये सोचे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान बनाना है, हमें इसको बिगाड़ना नहीं है। I want to say that Christmas is not the season of sharing gifts, but it is a season of sharing. I want to say a very warm happy Christmas and हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये खुशी का मौका खास तौर पर क्रिसमस है, क्रिसमस एक सेलिब्रेशन है, इसके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, क्रिसमस डिनर है, एनुअल हमारा ये डिनर होता है, हर साल हम यहाँ आते हैं और हम बहुत हैप्पी हैं, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने दूसरे? जी, मैं ये पैगाम दूंगी कि क्रिसमस का मौका है, आप सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए। आज के दिन के हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत खुश हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो हमारे यहाँ पे सारे फंक्शन में थे, जो हमें ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई है। और बाकी ये कि पाकिस्तान की जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और ये कि पाकिस्तान दोनों मज़ाहिब ने मिल के बनाया है, तो इसी तरह से ये है कि हम आइंदा भी चाहते हैं किसी तौर से हम दोनों कौमें मिल के पाकिस्तान के परचम तले बल्कि एक यूनिटी को जाहिर करें। और आज हम बहुत खुश हैं और मेरी तरफ से आप सबको भी नया साल और क्रिसमस मुबारक हो। तमाम मसीही बरादरी को और दुनिया भर में मसीही को क्रिसमस मुबारक कहना चाहूँगा। और क्रिसमस का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है, पीस का ईमान का ये मैसेज है। आज का मैसेज अमन का और पीस का मैसेज है और ख़ास तौर पर
आज ये जो प्रोग्राम यहाँ जो हुआ है इसमें इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से बात की गई है और एक दूसरे के डिफरेंसेस को किस तरीके से हम जो है वो डिफरेंसेस के साथ रह सकते हैं और मुल्क के अंदर जो है बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मसीही कौम जो है तहरीक पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक मसीही बरादरी का एक किरदार रहा है और पंजाब असम्बली में ख़ास तौर पर SP सिंघा ने कास्टिंग वोट डाला और लाहौर और बहुत बड़े पंजाब के हिस्से को पाकिस्तान में शामिल करवाया है। ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस में, जुडिशरी में पाकिस्तान में आप देखें तो बड़े बड़े कलीदी अहदों पर मसीही बरादरी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से मुल्क और कौम का पूरी दुनिया में जो है वो नाम रोशन हो रहा है। फॉर्म के रेफरेंस से जो मुझे मौका मिला है, मैं पूरी कौम को जो है वो इत्तेहाद की, इत्तेफाक की जो है वो तलकीन करती हूँ और मेरे ख्याल में हमारे लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि खुदा हमारे मुल्क को, हमारी कौम को सालमियत और यकजहती और यगानवत दे। के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मसीह का इस दुनिया में आना इसलिए था कि अमन हो जाए। तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अमन और सुलह सफाई से रहना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम ना बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना पठान हैं, बल्कि हम एक कौम पाकिस्तानी हैं। और मेरी तरफ से, मैं कुवैत में रहता हूँ, मेरी तरफ से मेरे कुवैत में जितने दोस्त हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मेरे दोस्त हैं उन सबको हैप्पी क्रिसमस मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से। प्रोग्राम जो देखा हमने उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात थी वो अपने वतन से मोहब्बत थी और उसका जोश था जो कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर मौजूद है और हमेशा रहेगा। और अपने मुल्क के साथ जो वफा हम लोग सब निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज का जो फंक्शन था बहुत अच्छा था, मोहब्बत पे मबनी था और मुल्क को कौम की वफा पे मबनी था। शुक्रिया। क्या होना चाहिए, इस तरह क्रिश्चियन मुस्लिम इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के ख्यालात के बारे में जानते हैं कि दिलों में इतनी नफरत नहीं है बल्कि प्यार है, तो गेट टुगेदर होने चाहिए इस तरह के। आज जैसा कि यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है क्रिसमस, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये एक अमन का त्यौहार है और पूरे मुल्क के लिए एक अमन सलामती का एक मैसेज हमें देता है। तो हम तमाम मेजोरिटी और मिनोरिटीज़ के साथ मिलकर इस खुशी में शरीक होना चाहते हैं। चाहता और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सब ने इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लगा। की और बिल्कुल ठीक बात की है कि मुसलमानों और क्रिश्चियन बहन भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए दोनों कौमों को मिलकर जो है वो यकजा होकर काम करना चाहिए। इसी में सबका फायदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेते हैं, सबको मिलकर पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना चाहिए और हमें शाना बशाना चलना चाहिए और अपने मुल्क को बचाना चाहिए। सही विषय आपने बात की है कि हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए ताकि इसी तरह से हम अपने मुल्क और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता कर सकते हैं। जिस तरह से दूसरे मुल्क जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुके हैं, अगर हम लोग भी इकट्ठे रहेंगे तो हम लोग अपने मुल्क को वाकई एक बहुत ज़्यादा जो है वो अपग्रेड करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं, हम सब मुसलमान और क्रिश्चियन सब इधर इकट्ठे हैं और हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और आज के दिन हम जब सब इकट्ठे हैं तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक बार फिर हम सब इकट्ठे होकर एक अच्छी जगह पे मौजूद हैं और एक मजबूत पाकिस्तान हम चाहते हैं। तो आज का दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के दिन खुदावंद यीशु ने जो हमें पैगाम दिया वो है मोहब्बत का और अमन का। और मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क पाकिस्तान में मोहब्बत की फ़ज़ा बरकरार रहे और एक ऐसा मजबूत पाकिस्तान बने जिसमें अमन हो और वहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की कुव्वत बने, एक दूसरे की ताकत बने। तमाम नफ़रतों को ख़त्म करके इस आने वाले साल में मोहब्बत से हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हों। और ये मेरी दुआ भी है और मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है इस नए आने वाले साल के लिए कि इस मुल्क में अमन कायम हो, हम मिलजुल कर रहें और प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम रहे। मैं क्रिश्चियन बरादरी को क्रिसमस के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान को बिल्डअप करने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं और ये हमारे अपने भाई हैं, हम इनसे बहुत मुतासर हैं
कि ये कायदे आज़म के मिशन को लेकर चल रहे हैं और कायदे आज़म के मिशन को उजागर करना चाहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। हम पाकिस्तान को सलामत देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की अजमत को बहाल करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान जो हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अता फरमाया था, हम उस पाकिस्तान को वापस लाना चाहते हैं। खुदा रा हमारे पाकिस्तान को वापस ले आओ, हुक्मरानों खुदा रा हमारे पाकिस्तान को वापस ले आओ। हम आपके खादिम हैं, हमें पाकिस्तान वापस चाहिए। हमारे पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक कर दो, हमारे पाकिस्तान को तअस्सुब से पाक कर दो, हमारे पाकिस्तान को मज़हबी आज़ादी दे दो, हमारे पाकिस्तान को खुशहाल और मुरव्वत कर दो। हमारे पाकिस्तान में सुई गैस का बहरान है, हमारे पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, ये बहरान ख़त्म कर दो। हमारे पाकिस्तान से बिजली की चोरी ख़त्म कर दो, हमारे पाकिस्तान से सुई गैस की चोरी ख़त्म कर दो और पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर कामयाब तरीके से चल सकता है। पाकिस्तान में बहुत सी मादनियात हैं, पाकिस्तान में बहुत से वसाइल हैं जिनको हम अपना कर पाकिस्तान को खुशहाल कर सकते हैं। हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, हमें नीयत ठीक चाहिए, हम नीयत ठीक चाहते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, चूँकि इस वक्त बिल्कुल पूरी कौम को यकजहती की ज़रूरत है और उसके लिए आज का ये फंक्शन भी मैं समझता हूँ कि ये इंटरफेथ का फंक्शन था और इस किस्म की तकरीबात हमारे मुल्क में जारी और सारी रहनी चाहिए, जिसमें तमाम मज़हब व मिल्लत के अफराद शरीक हों और ये यकजहती की एक खूबसूरत सी मिसाल है। और माशाल्लाह आपका रॉयल टीवी जो है वो भी कौमी यकजहती पे बड़ा काम कर रहा है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आबा अजदाद ने ये खित्ता अरब से लेकर उस शरीफ तक ये यकजहती, प्यार, मोहब्बत, खिदमत खलक का काम किया है और वो काम इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और इसको पाइंदा रखे। नाजरीन, आपने देखा कि हम यहाँ पर आए और क्रिसमस के इस डिनर में शिरकत की। यहाँ पर लोग बहुत खुश थे, मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक थे। बिल्कुल ये पता नहीं चलता था कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये इखलाक, ये यगानगी और ये मुल्की यकजहती का जज्बा जो है, इसने आज लाहौर के बिशप जॉन अलेक्जेंडर मलिक ने जो बात की वो हम तमाम लोगों के लिए एक मशअल राह है। जॉन अलेक्जेंडर मलिक ने यह कहा कि आज हम लोग तमाम मुसलमान और तमाम ईसाई एक हैं। ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए मलिक साहब ने कहा कि हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं और हमेशा कुर्बानियां देंगे। उनके इस पैगाम ने मुसलमानों को भी ये बात बता दी है कि आप लोग तफरकों में ना पड़ें। अगर ये मोहब्बत कायम रहेगी तो ये मुल्क कायम रहेगा और अगर मुल्क नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो लोगों को समझ जाना चाहिए जो हमारे दरमियान तफरका फैलाना चाहते हैं। आज की मोहब्बतें देखकर हासदों के दिल पर तो छुरियां चली होंगी। काश ये मोहब्बतें कायम रहें और ईसाई और मुसलमान मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो ईसाई हैं, पाकिस्तान है तो मुसलमान हैं। हम तमाम लोगों की बका पाकिस्तान की बका से है और ये बका उसी वक्त है जब हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। हम इसी तरह मोहब्बतों के फूल खिलाते रहेंगे, इसी तरह मुसर्रतों की बेशुमार महफिलें जो है जमती रहेंगी, जिसमें ईसाई और मुसलमान मिलके एक दूसरे के साथ खुशियां जो शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस खूबसूरत दिन पर मैं अपने तमाम मसीही भाइयों बहनों को हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह उनकी हिफाजत करे और इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा कर सकें। एक बार फिर मैं अपने तमाम मसीह भाइयों और बहनों को हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। हैप्पी क्रिसमस टू यू। तो नाजरीन, अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन इब्रार शेख के साथ इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला की जात क्रिश्चियंस को और मुसलमान को इसी तरह इस पाकिस्तान में मोहब्बतों के फूल बखेरने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।